question है network delay time. It is another shortest path question. It's we are given a network with n nodes. Network में like हमारे फिफ्थ सेम में आएगा. नेटवर्क इज बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर का कनेक्शन. सो वी आर गिवन 6 n nodes और जिसमें लेबलिंग है 1 to n. Indexing is one indexed, not zero. We are given a list. We are given a adjacency list called times, in which we are given the start node, end node, or weight of the node. This is a new concept. I will explain this. This is a weighted and directed graph. Okay, where UI is the source, VI is the target, and WI time takes the. हाँ, यहाँ weight का मतलब है कि how much time the time it takes for signal to travel from source to target. ठीक है. That and we will consider that is a weight या फिर distance जो भी मान लो. We will send a signal from a given node k. हमारे पास source node दिया रहेगा k, and we have to return the minimum time it takes for all n node to receive the signal. If it is impossible, we will return -1. ठीक है. Let's understand कि question क्या चाहता है. ठीक है. Our first example is this graph, and we are given this matrix. This matrix, yeah, this is a matrix. The n number is for the number of nodes, and k is our source node. ठीक है. तो हमें बताया है कि we will start from 2. We will start from this node, and we have to return the maximum number of time it takes for signal to reach all nodes. ठीक है. अब इट वॉज नेवर मेंशन्ड कि यहाँ जाएंगे एक डायरेक्शन एक, इस डायरेक्शन का भी एक. नो, यहाँ पैरेलल इज ऑल राइट, मीनिंग सेम टाइम में हमारा सिग्नल यहाँ भी पहुंचेगा एंड यहाँ भी पहुंचेगा. सो टाइम इज 1, these both are reached, and another time is 2, this is reached. So at time 2 all nodes are reached. That is why the output is 2. ठीक है. That's the question part कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है. Similarly, in this question we are given ki there is 2 nodes, and the source node is 1, and like I will make this. Okay, this is our question. और हमें करना क्या है कि like ये solve कैसे हो रहा है. I'm just going to show that we are given only 2 nodes. This is 1 and this is 2. Only 2 nodes given, and there is a length from 1 to 2. डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा होता है कि इफ द डायरेक्शन इज गिवन, हमारा ट्रेवर्सल और जो भी हम मूवमेंट जो भी करेंगे, वी कैन ओनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. इट्स सिंपल. अनडायरेक्टेड में वी कैन गो फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 from 1, दोनों कनेक्टेड होने से. एंड इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स आई कैन ओनली गो फ्रॉम 1 to 2. यहाँ हमारा सोर्स नोड के इज गिवन एज 1. सो और यहाँ इसका वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है. दिस द थर्ड इज वेट. आवर वेट इज 1. वाई सकते हैं. लेट्स जस्ट दिस इज the our weight is 1. So that is why the output is 1, because यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करने में हमें only taking one unit. The last is यहाँ जस्ट हमारा सोर्स 2 कर रखा है. सेम प्रॉब्लम, ओनली द सोर्स इज from not 1, it's 2, and that means कि same graph, but we have to start from here. So हम because this is a directed graph, we can't grow from 2 to 1. There is no graph from 2 to 1. That is why this is output is -1, because we cannot reach from 2 to 1. Signal cannot go. That is why this is -1. This is the question part. I hope the question is clear. Algorithm separately for this question, not कि कैसे हम करेंगे, because you will see the similarities quite like जल्दी दिख जाएगा, but I will just
tell you the fundamentals, then we will go to the algorithm. First of all, this here is the type of input we will be given, right? N number of nodes, K the source node, and this graph or यहाँ times जो भी, this should be times not graph. Anyways, ये और इस इनपुट से हमारा ये ग्राफ बन रहा है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हमें शॉर्टेस्ट टाइम में कितना करना है. नाउ द लास्ट द एग्जांपल्स वर क्वाइट सिंपल बट ये लुक्स क्वाइट बिट कॉम्प्लिकेटेड. कैसे करेंगे हम? So there is a dedicated algorithm called the Dijkstra algorithm. Spelling मुझसे मत पूछना, I can't spell it. It's a very hard spelling. But this algorithm, उसको pronunciation में बहुत सारे हैं. Don't worry. समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूँ. तो algorithm simple है. The point is we are given a source and we have to solve the shortest path निकालना है सबसे. Basically from this node we have to find the shortest path for every node, और sometimes हमें दिया रहता है कि shortest path to the end node, और sometimes हमें बता रहा है कि shortest path in every node. Like हमारे question में it's asking कि I should calculate the shortest path to every node, then I should return the maximum of that. Alright. So हम जो solve करेंगे Dijkstra algorithm, I will solve for this question and you should Dijkstra algorithm में हम करते क्या है, राइट? फर्स्ट हम एक टेबल बना के सॉल्व करेंगे. दैट इज द इजीएस्ट वी कैन डू. ऑलराइट, दिस इज द सेम ग्राफ बाय द वे, डुप्लीट करके रखा है मैंने एंड लेट्स जस्ट सॉल्व इट. ओके, सॉरी. ओके, सो एट हम क्या करेंगे, आवर एल्गोरिथम इज वी विल go from one node to another and we will freeze the shortest one. Meaning कि हमारा ए नोड, हमारा स्टार्टिंग नोड ए था, राइट? ए था, जीरो था, लाइक सब इंटीजर होता है तो मिक्सअप होने लगता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस नोड्स आर ए बी सी डी. तो हमारा ए नोड था जीरो, स्टार्टिंग नोड, तो उसका अपन डिस्टेंस मान लेंगे जीरो है. स्टार्टिंग डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो. दिस दिस नोड इज फ्रोजन, राइट? लेट्स जस्ट स्क्वायर दिस नोड इज फ्रोजन. और टू बी ऑनेस्ट हमें ग्राफ को छूने की जरूरत भी नहीं है. वी विल जस्ट square it on the table कि this node is frozen, right? Now हमें चेक करना है कि the frozen node किस किस से कनेक्टेड है और उनके पाथ में हमें चेक करना है कि कोई नया आया नहीं. Like right now everything is dash और infinite. Like हम स्टार्टिंग में infinite distance लेते थे. जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना कि हमें मिनिमम निकालना है तो हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. So all of this is filled with infinites. So I've just made a dash here. It's the same thing. और हमें चेक करना है कि shortest path. So right now our node, हम जिस node पे खड़े हैं, that is the frozen node is A, right? तो हम A से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? We can only go B and C right now. Going, हमें outward arrows only देखना है. Only outward arrows, not inward arrows. बाद में inward arrows भी आएंगे, वो हमें ignore करने हैं. Only outward arrows. Okay. तो right now distance is 0 for A and for B is 10. All right. हमें हमारा A to B distance is 10, A to C distance is 3, and except हमें अभी तक नहीं पता, we have not visited, so they will be still be infinite. Okay, simple. अब हम क्या करेंगे? We will freeze the shortest of these two. We will freeze 3. Also we keep a note कि हम किसको freeze कर रहे हैं. Let's just say कि मैंने सबसे पहले A को freeze किया था. Now sorry, फर्स्ट रो में मैंने ए को फ्रीज किया था, सेकंड रो में मैंने सी को फ्रीज किया. आई विल जस्ट कीप अ नोट ऑफ दैट, लाइक दैट. और ओके, नाउ हमने थ्री को फ्रीज किया है, सी को फ्रीज किया है. सो दिस नोड इज फ्रोजन राइट नाउ, लाइक
I will just remove the red one because that is more eye-catching. We are right now at C, and what we will do is C से हम check करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते. We have three outward arrows, right? 1, 2 and 3. So we will check for all these three. ठीक है. जो frozen है that won't be changing. तो ये तो 0 और 3 रहेगा. Now the next is B, D and E. C is connected to all of them. तो B पे हम देखते हैं हमारा ओल्ड वैल्यू था 10. हमारा न्यू वैल्यू क्या हो रहा है? हमारा न्यू वैल्यू आ रहा है 3 जो ऑलरेडी था. द 3 वी ऑलरेडी हैड, लाइक इसका डिस्टेंस प्लस द न्यू डिस्टेंस. वी चेक द वेट लाइक दैट क्योंकि हमें सोर्स से जाना है ना. तो ऑल्दो इससे चेक कर रहे हैं पुराना वेट इसका एडेड रहेगा. पुराना डिस्टेंस वेट वट एवर. लाइक तो इसका पहले से 3 है एंड वी विल एड 1. तो इसका न्यू डिस्टेंस आ रहा है 4 which is less than 10, right? That is why this will be updated to 4. Before it was 10, right now it's 4. Okay, I hope this is an important step and सबको समझ में आ रहा होगा how we updated from 10 to 4. Like ग्राफ में देखने से समझ में आ जाएगा. Like see, हम A से डायरेक्ट B अगर should use the red one. A से B हम डायरेक्ट जाए, we are taking 10 seconds or 10 steps, whatever you want to call it. And if I go from A to C, then C to B, I am going to take only 4 steps. So that is why I will, like shortest हमें जानना है, तो we will prefer the short. That's why it's 4 right now. Okay. Similarly, D and E are unvisited. So I will just simply say 8, not 8, sorry, 8 is wrong. 8 plus 3, don't forget that. Like मैं खुद गलती कर रहा हूँ. 8 should be added with the weight. So 8 plus 3 is 11 and 3 plus 2 is 5. Okay. तो ये दोनों new entries हैं and this is already frozen, right? These are frozen. This is also frozen. We can't choose these values. तो हमारे पास क्या है? 4 है, 5 है, 11 है. तो what we will freeze? We will freeze the smallest, which is 4. And I will just write कि मैंने B को freeze किया है. Copy down the frozen parts. 4, 3. And then we will check कि हम अब B में है. We are here right now. और हम इससे बस एक ही आउटपुट एरो है, that is D. And 4 plus 2 is 6. हमारा D का पहले का वैल्यू था 11 right now, और 4 added with 2, the weight is 6. Okay, so we will update again. Similar to last time, we will update 11 to 6, and we cannot go B to E directly, right? मैं देखा कि 11 था, now 6 हो गया, we have updated it. एंड हम B से E कोई न्यू पाथ नहीं है. वी विल जस्ट रिपीट कि हमारा पहले था 5 तो 5. राइट. दीज 3 आर ऑलरेडी फ्रोजन. लाइक लाइन खींच दे रहा हूं मैं. दीज 3 आर फ्रोजन. नाउ वी हैव 6 and 5. आई विल फ्रीज 5 बिकॉज शॉर्टर है. लाइक समटाइम्स हमें ऐसा आएगा कि दोनों सेम लेंथ का होगा. So we can just freeze whichever we want. There is no restriction on it. I am freezing 5 right now. Like अगर दो 6 होते, I can freeze anyone. There is no problem. लास्ट में हमें बस सारे फ्रीज करने हैं. That's the main क्या बोलते हैं aim of this algorithm कि सारे फ्रीज करने हैं. मैंने E को फ्रीज कर दिया. I will note it down. 0, 4, 3 and 5. And right now we are only having 6. तो D से yeah, D से E. I will should move it right bit. हाँ, D से E जाने का पाथ हमें चेक करना है. इट इज D पे हमारा क्या था? हमारे D पे था, सॉरी, E से हमारा D चेक करना है. सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा. वी आर एट E राइट नाउ. वी आर एट E राइट नाउ एंड वी नीड टू चेक
D to E. This is 7. Let me check. This should be 7. Yeah, it is 7. Right, this is 7. The weight is 7. Sorry for the miscalculation. वो 1 दिख रहा है. It is 7. Right. This should be 7. Okay. तो हम कहाँ थे? Okay, we are at E right now and we have to check for D. So E पे हमारा weight था 5 and 5 plus 7 is 12, which is not smaller than 6. So we will just keep 6. Sorry. Uh, you understand क्या कर रहा हूँ मैं? This is 6 and lastly we will freeze D. D is also frozen. और D frozen है. D से we can check D to E again, but there is no point क्योंकि E से ही हम D जा रहे थे इससे पहले. But still, E 6 plus 4 is 10 and E से हमारा 5 जा चुका है हमने, so there is no point. So इस एल्गोरिथम से हमें मिला क्या? इतना काम क्यों करवा रहे हो भैया? That is the point, right? इससे हमें मिला कि basically the distance of all the node from A, shortest distance, A to, let's say, yeah, this is right. A to B हमें शॉर्टेस्ट क्या मिला? A to B हमें शॉर्टेस्ट मिला. इस वाले नोड को चेक कर रहे हैं हम, इस वाले रो को. A to B हमें शॉर्टेस्ट मिला 4. ओके. A to C शॉर्टेस्ट मिला है मेरे को 3. A to A to D मुझे शॉर्टेस्ट मिला है 6. A to E मुझे शॉर्टेस्ट मिला है 5. राइट, 5 नोड्स थे. ए हमारा सोर्स है, सोर्स से सबका अपन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो this algorithm provided me the shortest path from the source element to all the elements, source node to all other nodes in the graph, the shortest path in like graph traversal के बाद. Okay. अब our question asks कि source से सारे ट्रेवर्स करने में मिनिमम टाइम क्या था. राइट, मतलब लेट्स से कि हमारा ए से सी तक 3 सेकंड में सारे सिग्नल आ गए, बट देर इज स्टिल 4, 5 एंड 6, राइट. तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम? इट विल ऑलवेज बी 6. की मैक्सिमम जो था, मैक्सिमम पाथ जो निकला, दैट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड. लाइक उससे ज्यादा होगा तो दैट इज एक्स्ट्रा एंड वेस्टेज जो हमें चाहिए नहीं. तो वी विल रिटर्न 6. दैट इज द मैक्सिमम. That is how we do the Dijkstra algorithm. The coding part. Coding part is a bit लेंदी टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने कोड लिख के रख दिया है. फल हम बना रहे हैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे एंड उस लिस्ट का एक एरे. दैट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड. बेसिकली दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट. क्या कर रहा है? दिस विल होल्ड, आई शुड जस्ट ओके, आई विल स्प्लिट स्क्रीन होता है ना, जस्ट डू दैट. राइट, या हाँ, यहाँ ये दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट कि क्या हो रहा है. वी आर मेकिंग अ लिस्ट जिसमें हम बेसिकली कह रहे हैं कि इस ग्राफ के ith रो में या फिर ग्राफ ऑफ आई, जो भी हमारा जी है, ग्राफ ऑफ आई में हम स्टोर क्या कर रहे हैं? वी आर स्टोरिंग एरेज जिसमें लेट से हमारा वो है, आई विल शो यू द ग्राफ हियर. जैसे हमारा ए है, ए से हम स्टोर करेंगे 10 और 3 एंड बी सी. ओके, तो क्या स्टोर कर रहे हैं? वी विल स्टोर बी 10 and C
3. We are storing this information in the जीरो या फिर वन वन इंडेक्स है ना, तो जी ऑफ वन में हम ये स्टोर कर रहे हैं। वन यहाँ ए होना चाहिए एंड दिस शुड बी टू एंड थ्री, बट फॉर द क्लैरिटी आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज ए। तो व्हाट इज दिस, हमारा ग्राफ शो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, हमारा ग्राफ, यहाँ जो ये हमारा ग्राफ बना है, दैट इज स्टोरिंग कि हमारे ith नोड में, ith एलिमेंट या फिर ith इंडेक्स में से कौन कौन से कनेक्टेड नोड्स हैं। ए इज कनेक्टेड टू बी, उसका वेट 10 है। ए इज कनेक्टेड टू सी, उसका वेट 3 है। ऐसा वी विल हैव अ जी ऑफ बी, अ जी ऑफ सी, ऐसा करके हम रखेंगे। सिमिलरली वी विल हैव अ एरे जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे, एंड दिस एंटायर थिंग इज अ एरे कॉल्ड ग्राफ। दैट बेसिकली दिस इज अ 3D ग्राफ। हम 2D ग्राफ देखते थे इससे पहले तक, दिस इज अ 3D ग्राफ। तीन है, बिकॉज array list itself is a kind of array, then there is integer array inside it and the array of that. This is a 3D graph. I hope it's understandable कि क्या करना चाहता था मैं, या फिर क्या कर रहा हूँ इस कोड में मैं। Then the next part is this this हाँ, first of all ये वाला array is for initialization। लाइक जावा बेसिक्स में मैं पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन न्यू न्यू कीवर्ड के बिना नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज दिस इज अ एरे लिस्ट और उसके सारे एलिमेंट एरे लिस्ट होने चाहिए। वी मस्ट इनिशियलाइज इंडिविजुअली कि हर एक ग्राफ ऑफ आई इज अ न्यू एरे लिस्ट करते करते, दैट इज व्हाई वी हैव टू इनिशियलाइज इट, दैट इज व्हाई दिस लूप इज हियर। नो लाइक, देन देयर इज दिस लूप इज फॉर एडिंग द वैल्यूज कि int edge is in times, like टाइम्स में हमारा क्या था, टाइम्स, दिस इज टाइम्स राइट, हमारे पास टाइम्स है, दिस इज टाइम्स, एंड टाइम्स के अंदर एक एक एरे है ऐसा, राइट, दिस एरे इज इनसाइड टाइम्स। तो टाइम्स ऑफ टाइम्स के अंदर का ये जो फॉर ईच लूप है, दिस इज एज इज, लेट्स से दिस इज एज राइट नाउ, एंड एज के जीरोथ इंडेक्स में, मतलब सोर्स वाले पॉइंट के एज ऑफ जीरो, मतलब ग्राफ में उस पॉइंट से वी आर एडिंग अ न्यू इंटीजर जिसमें एज ऑफ वन एंड एज ऑफ टू है। व्हाट, बेसिकली जस्ट कि इस वाले नोड पे ये दोनों स्टोर करो, ग्राफ के जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें। बेसिकली जीरो नोड इज कनेक्टेड टू वन नोड एंड वेट इज 10। उसके बाद ये आएगा एज, जब चेंज होगा, जीरो इज कनेक्टेड टू टू and weight is 3. So 2, 3 will be added to the array list containing 0. I hope that is like understandable. Right. All right. और इससे अब पूरा ये ट्रेवर्स होगा और सारे एलिमेंट्स हम स्टोर कर लेंगे, लाइक ग्राफ, उससे हमारा ग्राफ रेडी होगा। दिस दीज टू लूप्स आर जस्ट टू रेडी द ग्राफ, क्योंकि हमारा काम सारा ग्राफ से ही होने वाला है। ऑलराइट, this is distance, this array is distance, and we are going to fill it with maximum। ये is, this is basically this part कि हम maximum भर रखे हैं। this part is basically, wait, कहाँ गया, ये वाला फर्स्ट रो, and the distance array is the update, like हर बार अपडेट होगा this first row, this is the distance array कि हर टाइम न्यू आएगा, न्यू में हम लाइक अपडेट करते रहेंगे जब भी विजिटेड होगा। दिस एरे इज डिस्टेंस एरे। ओके, दैट शुड बी रिलेटेबल। एंड डिस्टेंस के इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट, जैसे यहाँ तो ए ही है, दैट इज वाई ए जीरो, वहां के को लेट से सी दिया होता तो सी विल बी जीरो, लाइक दैट। डिस्टेंस ऑफ के इज जीरो। देन दिस प्रायोरिटी क्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ दिस कोड, लाइक हमें लगेगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों हम यूज कहाँ कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू का, आएगा प्रायोरिटी की, वी विल यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू फॉर द अपडेशन। ओके, तो प्रायोरिटी को रहने दो अभी, प्रायोरिटी क्यू का दिस पार्ट आई शुड एक्सप्लेन कि this is a lambda function. I don't think we have covered lambda functions, but what lambda function is do is this is basically a summary और या फिर shortcut form of a complete function, जो हम लिखते हैं ना कि method something something everything, this is a mini version of that। हम क्या बोल रहे हैं इससे कि a कॉमा हमारे क्यू में a कॉमा b रहेगा जब a of I, a is because this is a integer array, both a and b are integer array, so a of I minus b of I, what does that mean? That is अगर a of I is smaller than b of I, then we will क्यू में इस मैनर में एडेड हो रहेगा, लाइक दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू, राइट। नॉर्मल क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू का डिफरेंस हमें बताया था कि क्या होता था, प्रायोरिटी क्यू में ऑर्डर चेंज होता है, राइट। तो यहाँ का ऑर्डर इनपुट के टाइम में हमारा ऑर्डर कैसे चेंज होगा, वो दिस इज दैट। लेट्स से हमारा प्रायोरिटी क्यू में दो एरे है, वन इज क्या, सॉरी नॉट जीरो, वन इज 2 7 एंड वन इज 3 8 और 3 2, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में ये जो दिस इज अ क्यू, राइट, एरे मत समझ लेना, दिस इज अ क्यू एंड यहाँ हमें दे रखा है कि this comes first and then this one comes, right? क्यू में भी this is start, this is end, याद होगा सबको। So priority क्यू क्या करता है, this it sorts itself during, like जब entering होता है, add के टाइम पे हमारा sort होता है। तो this is a mean heap, मतलब मिनिमम हमेशा सामने रहेगा, राइट। लाइक इसी फंक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, बी और ए कर दूं, इट विल बिकम अ मैक्स हीप, मीनिंग मैक्सिमम सामने रहेगा। मीन हीप में हम क्या चेक कर, हम ओनली चेकिंग दिस वैल्यू, sorry, I'm only checking not zeroth index, I'm checking the first index, right? I'm only checking these values। तो हमारा जब ये सेकंड में जब ऐड आएगा, ये सेकंड वाला जब एडिशन होगा, देन हमारा कंपैरिजन होगा कि इन दोनों में कौन आगे आना चाहिए, कि किसको पहले रखेंगे, क्यू में सामने रखेंगे। तो वी विल से कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बिकॉज इसका कंपेरेटर छोटा है, राइट। इस इस कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि अगर नेगेटिव हुआ देन ए सामने रहेगा, अगर पॉजिटिव हुआ देन ए पीछे रहेगा। दैट इज द मीनिंग। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, वी कैन राइट दैट की, बट टू मच वर्क, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ स्वैप होगा हमारा, क्यू री स्वैप होगा, दैट्स इट, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस कंपैरेटर जो हमने लगाया है। दिस इज कॉल्ड अ कंपैरेटर, कंपैरेटर फंक्शन, जो कि इंटरनली ओवरराइड हो रहा है लैम्डा फंक्शंस के हेल्प से। दैट इज टू मच वर्क, तो मतलब वो थियोरेटिकल है, पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट हार्ड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, वी आर स्टार्टिंग द प्रायोरिटी क्यू, जैसे हम डीएफएस बीएफएस में करते हैं, सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रायोरिटी क्यू विथ के एंड जीरो, ठीक है। अब व्हाट इज के जीरो, के जीरो सेज के मतलब हम वी आर स्टार्टिंग एट के and we current distance is zero, that that's what it means कि current distance k, like starting at k and current distance zero, we are going to start with this and we are going to run while priority queue is empty, ठीक है। then we will take a array called current जिसका हम last element निकालेंगे and we are going to take these two values। I should do a dry run of this probably, let's say हमारा भी uh, let's get rid of this, sorry, okay।
दिस इज माई क्यू एंड लेट्स से हमारे पास एक एरे आया विच इज K0, राइट? K0 है हमारा एंड K0 आएगा, देन वी विल जस्ट पॉप इट आउट कि क्योंकि फर्स्ट में ही पॉप आउट हो रहा है ये दिस पार्ट, हमारा K0 पॉप आउट हुआ। वी आर सेइंग कि नोड इज K एंड टाइम इज 0, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू चेक इज टाइम ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ नोड। डिस्टेंस ऑफ नोड इज दिस इज लाइक मैंने बोला था ना कि वी विल कीप अ एरे जिसमें हमने पुराना वैल्यू अपडेट, पुराना वैल्यू चेक होगा, क्योंकि लास्ट हमने क्या देखा था कि, सॉरी, वी वर कंपेयरिंग फ्रॉम लास्ट रो, राइट? कि हमारे इस रो को फिल करने के लिए वी वर चेकिंग लास्ट रो। दैट इज वाई हमें डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वो लास्ट रो की वैल्यू रखेगा एंड देन वी विल फिल द न्यू रो। ओके, दैट इज द यूज ऑफ डिस्टेंस। तो हम यहाँ डिस्टेंस से चेक कर रहे हैं, अगर टाइम डिस्टेंस से ज्यादा हुआ, मीनिंग कि ये जो टाइम हमने लिखा है अभी, विच इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, कि डिस्टेंस ऑफ नोड ऑल्सो कंटेन्स टाइम, राइट? डिस्टेंस ऑफ नोड में हम अपडेट करके रखते हैं एंड प्रायोरिटी क्यू में अपडेशन का कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कि अगर हमें ऐसा मिलता है कि टाइम इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ नोड, बोथ आर कंटेनिंग टाइम फॉर द सेम नोड, रिमेंबर दैट, ठीक है? तो ये जस्ट बोल रहा है कि अगर ये पुराना वैल्यू ज्यादा है वी विल कंटिन्यू, वी विल जस्ट गो अप एंड वी विल डू अगेन। हमें अगर ज्यादा है तो हमें कुछ करना ही नहीं, अपडेशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, राइट? अगर छोटा हुआ ओनली देन वी विल डू दिस पार्ट। व्हाट इज दिस पार्ट, क्या कर रहा है? वी आर गोइंग टू टेक अनदर फॉर ईच लूप जिसमें हम रखेंगे नेबर, और उसमें हम रखेंगे ग्राफ के नोड्स को, ठीक है? मतलब हमारा ग्राफ क्या था, ये हमारा ग्राफ था, दिस इज ग्राफ नोड, और उसमें हमारा फॉर ईच लूप चल रहा है, लाइक दिस पार्ट का फॉर ईच लूप चल रहा है, ठीक है? उसमें हम नेक्स्ट नोड ले लिया, दिस लेट्स से कि ये वाला पे है हम, फॉर ईच लूप हमारा दिस इस कंपोनेंट पे है, एंड फॉर ईच लूप का हमने नेबर डॉट जीरो मतलब नेक्स्ट नोड ले लिया, एंड हमने एक वेट ले लिया 10। ओके, हम क्या करेंगे, वी विल चेक कि डिस्टेंस में जो मतलब पुराना वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस वेट, जो अभी नया वेट ऐड हुआ, इफ इट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है? यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम कहाँ हैं? लेट्स से हम यहाँ पे हैं, इस ये वाला स्वैपिंग, दिस इज 11 and 6, राइट? तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा ओल्ड था, व्हाट हमारा ओल्ड था यहाँ पे 3, राइट? आई थिंक 3 था, was it 3 though? It was 4. This is D, and 6 हुआ यहाँ से, ओके, दिस इज 4। यहाँ पे थे हम, एंड इससे पहले हमारा डायरेक्शन में यहाँ 11 आया था, 3 + 8 11, एंड वी सेड कि 4 + 2 6 आ रहा है, दैट वाज शॉर्टर, राइट? तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम 4 कहाँ से लाया, 4 यहाँ है, तो हम डी नोड पे खड़े हैं, बी नोड पे खड़े हैं, वी विल चेक कि ओल्ड प्लस न्यू वेट, ओल्ड था 4 एंड न्यू वेट है 2, अगर ये दोनों का सम इज स्मॉलर देन जो पहले से था डिस्टेंस 11, देन वी विल अपडेट। वी विल नॉट जस्ट अपडेट, यहाँ हम देखो, हमने यहाँ अपडेट किया एंड वी ऑल्सो एडेड इट इन द प्रायोरिटी क्यू। अब यू विल आस्क कि ये सब तो ठीक है, बट व्हाट इज द प्रायोरिटी क्यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटी क्यू से हमें लाइक ट्रेवर्सल में हेल्प हो रही है, but the main point is priority queue because we cannot update the elements of the priority queue, इसलिए we are going to add new elements बार बार। what does that mean? कि हमारा ये जो वैल्यू है, once added we cannot update it, ठीक है? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में इंडेक्सिंग नहीं होता है, इट इज अ क्यू, एंड हमें पता है कि क्यू और स्टैक के अंदर का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वी कैन नॉट टच दैट।
Okay, तो we cannot update this value, we can only add new values. तो मीन हीप क्या करता है? मीन हीप जो भी क्या बोलते हैं, मीन ही मिनिमम मिनिमम वैल्यूज को सामने रखता है, मिनिमम वैल्यूज को हम प्रोसेस करते हैं, एंड जो भी मैक्सिमम जो लेटर में जो भी मैक्सिमम रहेगा, मतलब रिडंडेंट और क्या बोलते हैं ज्यादा वाले जो वैल्यू कलेक्ट होंगे, इस लूप से कंटिन्यूअसली बाहर चले जाएंगे, लाइक वो बहुत फास्ट होगा एंड वी वोंट टेक एनी टाइम। मीन ही जस्ट टू क्लटर अराउंड को सही करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द मीन ही, and the priority queue helps in this matter. Okay. I hope this whole entire process, this whole loop is understandable. वही पॉसिबल है Maximum इसमें। time की minimum सबको पहुंचने के लिए. So that is the maximum time in the array. I hope that is not incoherent. And that's it. Code देख लो. Code is a bit like अजीब टाइप का है, like बहुत लंबा है, but once you understand the algorithm behind it, it's easy.